I believe. What was the need to do the periodic classification? What does periodic word means? Sir, means it should be scheduled types. क्या क्या it should be? Manner schedule. मतलब एकदम Scheduled नहीं होता उसका मतलब होता है repetitive after a fixed interval. ठीक है? Yes, sir. Periodic means repetitive in nature. Repetitive after स्पेलिंग चेक कर लेना, सही है गड़बड़ है तो बता देना. रिपीट नहीं आएगा. ए नहीं आएगा, ए गलती से लिखा, फिर से मैंने इंट्रोड्यूस किया. इज दिस द स्पेलिंग? सर मैं चैट में लिखता हूँ. अच्छा चलेगा, लिख दो. ओके फाइन, थैंक्स. Repetitive after fixed interval. Okay. So anything which is repeating itself or attaining the same values or same type of behavior, repetitive after fixed interval. Okay. That is repetition in behavior. Repetition of or repeat of behavior after a fixed interval. ठीक है? That is known as periodic. ठीक है? And classification means obviously classifying. So what we are trying to do over here is we are trying to group or club our elements. ठीक है? Group or club the elements which are known to us such that the group should have repetition of common behaviors. ठीक है? Common behaviors मतलब we are more concerned about chemical than physical. ठीक है? So we are trying to club things or elements or elements on the basis of similarity of their behavior. ठीक है? That is the whole concept. Now, why did we wanted to have this periodic classification at all? ठीक है? The reason was very simple. As the time progressed, initially early 18th century में we hardly used to know few elements, 10, 12, 15 थे. उनके कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स हमको पता थे, तो हम लोग उसको अपना मेमोरी ये जो बनाते हैं ना फ्लैश कार्ड्स, ठीक है? सो मेमोरी फ्लैश कार्ड्स की तरह हम उनके प्रॉपर्टीज को लिख करके एंड ध्यान कर लिया करते थे कि अच्छा इसके ये कंपाउंड्स नोन है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, तो फ्लैश कार्ड पे हमारा काम चल जाया करता था. बट एज द नंबर स्टार्टेड ग्रोइंग अप, ठीक है, as the numbers started growing up, it became really very difficult. It became really very difficult to know all the chemical behaviors of all the elements distinctly. ठीक है? It used to consume a lot of time. Obviously, it is going to consume a lot of time in order to precisely link up the trends or link up the trends in behavior of different elements which were known to us. The way they are reacting with something or something else, उनके behaviors
को भी प्रिडिक्ट कर पाना या सोच पाने के लिए हमको उनकी सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान में रहना जरूरी लगता था, ठीक है। एंड दैट इज वेयर वी स्टार्टेड फीलिंग दैट यार ऐसे अगर जैसे 50 एलिमेंट हो गए और 50 के अलग अलग याद करने होंगे तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अगर उसको मैं 5-5 के भी ग्रुप में अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे 10 ही इंडिपेंडेंट चीजें याद करनी होंगी। सो माय एफर्ट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड अ लॉट। 50 चीजों को डिस्टिंक्टिवली याद करके रखना या उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्टिवली याद रखना और सिर्फ 10 कैटेगरी के इंफॉर्मेशन याद रखना, डिस्टिंक्टिव इंफॉर्मेशन याद रखना 10 कैटेगरीज के, ऑब्वियसली 10 कैटेगरी वाला हमारे लिए इजियर रहेगा, ठीक है। दैट इज वेयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केम इनटू बी, ठीक है। दैट इज वेयर वी स्टार्टेड realizing the strength of periodic classification. If we are going to club them together on the basis of their well chosen of behaviors, it will be very much time effective method to discuss their properties, to know about their chemical compounds, to know the way they are going to react with any given thing. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुआ पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक चीज है जो कि गोज अगेंस्ट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये काउंटर व्यू भी आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि दिस काउंटर व्यू इज द एसेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इट्स एसेंस ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे समझो। And that statement is very simple. No two elements, no matter how close they are, they can be exactly similar to each other. ठीक है? No two elements in this universe can be exactly similar to each other. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है? For simple reasons, they might have many similarities in nature, but there is a great distinctive, there is going to be great character distinctiveness among them, ठीक है। दोनों एक दूसरे को हमेशा और हर जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर ऑब्वियसली नेचर के अंदर में इतने सारे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती जितनी हम देख रहे हैं, या इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं हो पाती है एलिमेंट्स की, ना ही हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं जितने की हैं, और ना ही हमारे पास शायद जिस लेवल का वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं वो हमारे पास हो पाता। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये वेरिएशन इन एलिमेंट्स नहीं एग्जिस्ट करता, इन प्रॉपर्टीज, इन देयर बिहेवियर, देन हमारे राउंड अबाउट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज देखते हैं हम, दैट वुड सेल्फ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। इज इट ओके? सो हेलो सर। यस, हेलो सर वो आप सर वो मेरा एक्सेप्शन और बोलने आते सर उसके बाद में डिस्कनेक्ट हो जाता सर। हाँ, एक्सेप्शन में बोलने वाला था और लिख रहा हूं मैं। दैट एक्सेप्शन इज no two elements can be exactly similar to each other. ठीक है? No matter how close they are in properties, no matter how close
are in terms of behavior. ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर दो एलिमेंट्स या जो भी दो एलिमेंट्स है, ऐसे तो हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर ही रखा है, वी नो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें 18 ग्रुप्स हैं, उसमें एलिमेंट्स डिवाइडेड हैं। तो अगर सारे ग्रुप के एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, तो फिर हमारे पास 18 या शायद 18 फैक्टोरियल या आई मीन जितने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं उतने कंपाउंड्स डेफिनेटली नहीं मिलते, वी वुड हैव लेसर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एंड दैट्स हाउ द लेसर वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। सो द ओवरऑल पॉइंट, आई मीन यहाँ पर बेसिक पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि whatever we have tried so far in order to organize ourselves is basically or has revolved around the idea that the distinctiveness of the elements is their uh, inherent nature, ठीक है, distinctiveness in properties of elements is their inherent characteristic, ठीक है। Still, going against all the odds, we have tried to create this periodic classification so that we can have a greater command over the or better command over the behavior in predicting the behavior of different elements, ठीक है। So the sole purpose was, despite of all the diversities or all the distinctiveness, what common things can be found in them so that we can easily correlate their properties, ठीक है, it's about easily correlating their properties, fine। So distinctiveness of elements is their inherited characteristic, ठीक है, distinctiveness और नहीं, ये क्या बोला आपने सर, लाइक अल्फा एंड एच ई प्लस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू कैन आस्क सर वो एक्चुअली मैंने पहले वाले एक्सेप्शन के लिए बोला था। अच्छा वो ऊपर वाले के लिए, नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो उन दोनों के भी प्रॉपर्टीज He प्लस और अल्फा के भी थोड़े से सेम ही रहते हैं ना? नहीं, वो दोनों मतलब both of them are not elements now. Alpha is something which has been made from He by subtracting its two electrons, right? Yes sir. So this is a product of helium, और ये एटम है और ये आयन है उसका, ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, नो डाउट अबाउट that this is going to be attracted by electric and magnetic fields, this is going to respond to electric and magnetic fields, this is not going to respond to any electric or magnetic fields, that is a great difference, isn't it? Yes sir. इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होएगी, इसके पास कोई रिएक्टिविटी नहीं रहेगी,
एक्चुअली इनहेरिटेड के बदले ना इंट्रिंसिक नेचर बोलते तो बोले तो ज्यादा बेटर है. सर फर्स्ट पॉइंट में फोर्थ लास्ट वर्ड क्या है? ये या ये सर वो पहले वाला. intrinsic. Intrinsic. There are two types of things, intrinsic and extrinsic. अंदर से और बाहर से. Physical appearance, outer appearance are called extrinsic, और behavior which you generally display from externally, जैसे मैं सांवला हूँ, मैं मोटा हूँ, ये मेरा एक्सटर्नल बिहेवियर है, या एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है. ठीक है. मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इट्स नॉट लाइक वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होंगी. हाँ, मेरा हेल्थ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मेरा हार्ट का फंक्शनिंग जो है वो मेरा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लंग्स की फंक्शनिंग जो है दैट इज माय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हाउ माय ब्रेन वर्क्स इज माय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. राइट. बात समझ में आई?
Is it the essence of this chapter clear? Basically motto of this chapter is finding unity in diversity, जो इंडिया का बेसिक स्लोगन है, unity in diversity. So we are trying to create or find out the unity or the common points between different distinctive things. ठीक है? And it definitely took a lot of time for us to categorize or to uh, group them together. ठीक है? Obviously there were reasons. पहले हमको कुछ भी पता नहीं था. We were relying on Dalton's atomic theory as the key theory for behavior of atoms. And उस era में obviously the informations which were with us were not that advanced, and due to which we cannot have a comprehensive categorization. So उस समय का जो categorization था और subsequently with passing time different जो हमारे ये आए, हमें जो informations मिलते गए, obviously breakthrough informations तो 20th century में ही मिले हैं, 1910 से लेकर के 1930-35 के बीच में, जब सारे मॉडल्स बने और डिस्कार्ड हुए मेजर मॉडल्स, तो दैट ऑल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन अर्ली 20th सेंचुरी. बट उसके पहले भी क्लासिफिकेशन मेथड्स जो थे वो चेंज होते रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन लाइक chemical properties which we would have or which we have been able to gather. ठीक है? जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हम गैदर कर पाते थे एलिमेंट्स के, वो जनरली फ्लैश कार्ड मेथड से हम लोग स्टोर करते थे और वहां पे हम ट्राई करते थे कि वी कैन क्रिएट अ बेटर ग्रुप. ठीक है? और अ बेटर ग्रुपिंग. This process was started with, for the first time, this grouping thing happened or was performed. Yes, Doberiner. ठीक है? He was a Russian fellow. He created a triad to depict the behaviors. ठीक है? और commonness in behavior of or similarities in behavior of elements. He was able to calculate or predict some 3-4 different sets of elements. और उनके बीच में वो कुछ रिलेशनशिप्स भी बता देता है कि एटॉमिक मासेस को अगर इनके हम ऐड करते हैं दो के एक्सट्रीम वाले के, तो मिडिल वाले का एटॉमिक मास मिल जाता है. एंड जिनका भी इस तरीके से एवरेज आउट चीजें हमको मिलती हैं, सीक्वेंस मिलता है, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है. ठीक है? एंड ही वाज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट विद सेट ऑफ सम 5 odd sets, that is around 15 such elements, जिन पे ये रूल वैलिड हो रहा था. तो जब उसने ये बनाया उस समय हमारे पास एलिमेंट्स का नॉलेज जो था दैट इटसेल्फ वाज क्वाइट लिमिटेड. ठीक है? मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास तो एलिमेंट्स थे, आई थिंक दे वेयर So Dominier ने जो किया है, he did it in between 1815 to 1829, and 18th century में 1800 पे we had knowledge of around 31 elements which grew like, उनके टाइम पे मुझे लगता है जो एलिमेंट्स थे हार्डली 35 से 40 एलिमेंट्स रहे होंगे मैक्स. 65 इयर्स में अराउंड 32 हमने ऐड किए. तो 32 जब अगर हमने ऐड किए हैं तो मे बी 20 इयर्स में हमने कुछ 10 या 12 ऐड किए होंगे या 15 ऐड किए होंगे, 45 तक रहे होंगे. उसमें से 15-20 के सॉलिड पेयर्स को अगर हम या ट्रिपलेट्स को अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो वी जनरेट अ होप दैट शायद थोड़ा आगे जाकर के कुछ और जो अभी मिसिंग है, कुछ और एलिमेंट्स मिले जो बाकी के ट्रायड्स को कंप्लीट कर लें. ठीक है? बट नंबर जब 63, 64, 65 पहुंचने लगेगा
then we are going to get more convinced that नहीं, that thing is not very much true, क्योंकि अगले 30 जो मिलते हैं they are not creating or they are not completing the triad of any of the known elements. जैसे 40 जो अगर मुझे पता है और 40 पे मैंने 15 के 5 ट्रायड क्रिएट कर लिए, ठीक है, और 40 के बाद मुझे 20 एलिमेंट्स और मिलते हैं और बाकी बचे हुए जो मेरे 15 के तो हो गए, 20 और बचे हुए हैं मेरे पास एलिमेंट, और 20 में से अगर 2-3 के भी अगर नहीं कंप्लीट होते हैं अगले 22-23 एलिमेंट मिलने पर, तो where will my hope go? Will it go in positive direction or negative direction? It will obviously fall apart, right? I will no more be hopeful that my things are going to get organized further with more discoveries, ठीक है. वहीं अगर उल्टा हुआ होता, that is हमें कुछ और ट्राइड्स मिल गए होते हैं, सपोज जैसे 23 नए एलिमेंट्स आए, उसमें से पुराने जो 20 हैं उसमें से 8-9 एलिमेंट के ट्रायड और बन जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 15-20 ट्रायड हो जाते हैं. 5 पहले से थे, 8 और बन जाते, 13 हो जाते, 39-40 आउट ऑफ 60 40 के मान लो ट्रायड बन जाते हैं. तो हमारा होप क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग ट्रायड इज द थिंग ऑफ चॉइस, इजंट इट? यही है जिसकी हमें जरूरत थी. अरे रुक जाओ, ये दूसरी जगह पर आ गए हैं, नंबर्स की मुझे जरूरत थी, सो आई जस्ट केम इन ओवर हियर, ठीक है ना? सर हाँ बोलिए ना. सर ये मतलब जो साइंटिस्ट है उनको आइडिया नहीं था कि मतलब अगर एलिमेंट्स आएंगे तो उनको कितना एटॉमिक मास होगा वगैरह, क्या क्या? मतलब उनका जो आने वाले एलिमेंट्स है उनका हाँ. एटॉमिक मास मतलब लगभग कैसे कितना होगा? नहीं, ये पहले से कैसे पता रहेगा किसी को? सर फिर वो मेंडलीव ने कैसे किया था? मैंडलीव ने तो वो पीरियोडिक मासेस को उसने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिया और उसने एक्सट्रापोलेट किया था चीजों को, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, बीच में जहां पर उसको लगा कि ये मिसिंग है तो वहां पर उसने मिसिंग वाले को फिल कर दिया. ही क्रिएटेड अ ग्राफ जहां पर कुछ चीजें मिसिंग थे, उसने बोला कि उसको ही वाज एबल टू पिक इट आउट, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, बीच के 5 एलिमेंट गायब है, मतलब 5 एटॉमिक मासेस हैं ही नहीं, तो उसने उन नंबर्स को फिलअप कर दिया. एंड दैट हैपेंड वेरी लेट, दैट डिडंट हैपन सो अर्ली. उसके भी टाइमलाइंस हैं, आई विल गिव द टाइमलाइंस टू यू गाइस, ठीक है ना, डोंट वरी. Mendeleev, I think he did it in ईयर तो नहीं दिया हुआ है, पिछले वाले में ईयर हम लोग को मिल जाएगा. ईयर्स बेसिकली मुझे उसी से कॉपी करना होगा, गेट इट फ्रॉम देयर, नो इश्यूज. Mendeleev, Mendeleev, I think he did this in he has created it after 1865, but before 19th century, ठीक है. 1865 से 19th सेंचुरी के बीच में उसने ये चीजें क्रिएट करी हैं. सो हाँ, व्हाट वाज योर क्वेरी कि उसको कैसे पता चला ना, वो उसने एक्सट्रापोलेट किया था
एंड एक्सट्रापोलेशन के बेसिस पर उसको पता चला था कि पता क्या चला था, उसने एक्सपेक्ट किया था कि मिलेंगे, बट कुछ एक केसेस में हाँ मिले भी हमें, और कुछ एक जो उसके प्रिडिक्शन थे वो थोड़े से अलग भी थे, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव भी है पार्ट और निगेटिव भी है। कुछ एलिमेंट्स हमको उसके बाद मिले हैं जो उसने प्रेडिक्ट किया था कि उनके ये एटॉमिक मासेस होंगे, उस एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स उनको मिले भी हैं। अगेन ही फेल्ड आल्सो एट सम प्लेसेस, ऑब्वियसली बाय सम डेविएशंस। उसके जो प्रेडिक्टेड एटॉमिक मासेस थे वो नहीं भी मिले हैं हमको, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मिले हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या क्वेश्चन था आपका, कुछ और भी था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया? if there is anything you can ask it again. No, sir. Understood. Okay. The next thing is, so the whole idea of this chapter is actually this sentence. Yeah. And periodic classification is all about this: understanding the grouping, understanding the trends in behavior. Yeah. Understanding the trends, understanding the trends in behavior. Next thing is history of periodic classification. आपको मैंने बोला कि इतना दूर मत रखो, अब ये चादर का क्या करने लाई हो? The first one was the first organized effort. ये रहेगा ही, मगर इसको टच कर दोगे ये जाएगा। लेकिन इसमें चेक कितना कैसे रहेगा बेटा? एक बात बता। और उसके पहले मैं वो नंबर्स का आइडिया सिर्फ लिख देता हूँ। 1800 में we knew about 31 elements. 1864 में we knew 63 elements. 2016 तक यानी अभी 2021 तक know about 116 elements. So 2016 में we had 118 ना? 108 elements. क्या सॉरी 118 है दिन 118 है क्या? एक सेकंड ठहर दो, नंबर देख लेने दो। आखिरी 4 जो आए थे वो मुझे ध्यान है 2016 में आए हैं, बट सर वो लास्ट दो आए वो ओगानेसॉन है और ये यूयू है। नहीं 2 नहीं 4 आए हैं टोटल। वो चारों का नाम फाइनली 2016 में दिया गया है। They have been included into periodic table. So that has happened in 2016. ठीक है सर हाँ बोलिए ना। तो मतलब कि जो पहले के जो मतलब जेडब्ल्यू के एग्जाम्स है सर उसमें 116 एलिमेंट्स ही मिलते थे। नहीं 114। और ये एलिमेंट्स का जेई एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे फेतुरात की मतलब फालतू की चीजें नहीं पूछता है। There are many more decent things to be asked. ये सिर्फ आपको एक टाइमलाइन अप्रोक्सीमेशन एंड जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट कि हाउ द साइंस हैज डेवलप्ड, ठीक है, और हाउ द एडवांसमेंट इन साइंस हैव टेकन प्लेस
ये चीज आपको हाईलाइट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. दिस इज एन irrelevant information. As far as exams is concerned, this is an irrelevant information. Is it okay? I should box it in Yes. red. ठीक है? It's an Sir, रेड में बॉक्स नहीं करते. हाँ बोलो ना. सॉरी बोलो. the 118 था ना 20. अरे यार हाँ 118 है मैम. वो पूछा कि कितने थे पहले के जेई में तो 114 बोला मैं. 4 कम थे 2016 के पहले तक और वही नंबर मैंने लिख दिया. सॉरी. What is the law? सर वो मास नंबर का कुछ Average of The average of the two rest of the two mass number will sorry atomic mass will be roughly equal to the atomic mass of the element which is lesser than the it is in the middle. सबसे बीच वाला एलिमेंट होता है सर और वो उस ट्राइड में से सेकंड सबसे ज्यादा एटॉमिक मास होता है और रफली इक्वल होता है उसका दोनों का एवरेज लोएस्ट और हाईएस्ट वन. तो क्या कर रही हेलो हो? हेलो 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 वो इतना हेवी है तो हेलो. Yes, एम आई sir. ऑडिबल? हाँ. अरे सॉरी वो गलती से पता नहीं कैसे माइक ऑफ हो गया. मैं एक्सप्लेन भी कर दिया पूरा. हाँ वैसे आपका डेफिनेशन मैंने सुना बट उसमें जो चीज मिसिंग थी वो थी कि ठीक है मासेज जो है वो एवरेज वगैरह हो गए. बड़े और छोटे का एवरेज मिडिल वाला होगा बट हाउ इज इट सॉल्विंग आवर पर्पस ऑफ ग्रुप. हम वो कर क्यों रहे हैं? बस ये जानने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि मिडिल वाला जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो बाकी दो के मास का सर एवरेज उनकी है. प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी. Right, their behavior or their properties of these three elements are going to be similar in nature. ठीक है? So he generalized this law stating that if we are going to find any three elements such that three elements having different atomic masses such that the middle one is having atomic mass closer to the average of the first and the last one, then properties of such triad will have definitive similarities. ठीक है? Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है?
So let us write it down. यार घर का कबाड़ी बना दो एकदम कमना कर मार चालू हो गया है हमें इधर आके देख लो जरा आगे क्या आपके घर का हाँ 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 ठीक है. This was the law. अब examples इसके, we have certain set of examples for it. I'm going to give them all to you. You have lithium 7, sodium 23, and potassium 39. This is one of the triads. The second triad is chlorine, bromine, and iodine. 35.5, 80, and 127. The third one is calcium, strontium, and barium. 40, 88, and 137. The fourth one is सर ये तो ऐसे ग्रुप्स में अभी ऐसे sulfur, क्या सर जैसे selenium, CL भी आ रहा है सारे सेम ग्रुप्स में अभी right? Yes, very much true. So, what to do? Huh? And the fifth pair was, or the fifth triplet was phosphorus 31, KF 75, and SB 120. ठीक है? So this is the triad or set of triads which followed that trend or that rule. Fortunately, क्या है? ये सारे के सारे triads जो हैं, they are in same groups in our current modern periodic table. ठीक है? और चूंकि सेम ग्रुप में है, हाँ बोलिए ना. सर वो कौन सा एलिमेंट है फोर्थ में सेकंड में थर्ड फोर्थ में सेकंड वन सेलिनियम है सी.
और सर फोर्थ थर्ड वन टेरिलियम, टेरूलियम, टेरिलियम, टेरूलियम, TRULLIUM। सर वो थोड़ा डेफिनेशन से नोट करना है। क्या देखना है? डेफिनेशन देखना है? नहीं, मुझे सबसे पहले इसका एक्सेप्शन लिख लेना है और फिर डिमेरिट लिख लेना है। Exceptions, obviously those which were known in those days only. ठीक है? You have triads like iron, cobalt and nickel. इनका भी एवरेज रहेगा लगभग जैसा इनका है वैसा ही. Iron is 56, cobalt is going to be iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Iron, nickel, 55 है, 58.7, 56 है और बन नहीं रहा है. निकल जो है वो है और अब 59. कोबल्ट जो है तो 59 ही होता है ना कोबाल्ट का. कोबल्ट भी 59 ही है और वो तो नहीं है. Rhodium, palladium. Sir, that Fe, cobalt and nickel wasn't फर्स्ट exception. में लगा रहे हो फिर में कहाँ हो रहा है? नहीं, वो एक्सेप्शन है, वो दूसरे टाइप का एक्सेप्शन है, मैं बताता हूँ. ठीक है, अभी बता रहा हूँ. एक ये पहले मुझे बता लेने दो, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ. ठीक है, वो भी एक्सेप्शन है, नहीं है ऐसा नहीं है. That is exception of category 2 and this is exception of category 1. ये approximately 106. ठीक है, तो रोडियम जो है इसका एटॉमिक मास जो है ये क्या है? दिस इज लाइंग इन बिटवीन, approximately in between ruthenium and palladium. ठीक है, but what is happening is their properties are not very much common. ठीक है, they have some similarities in properties but their chemical behaviors are entirely different.
some similarities, some similarity, but more differences. ठीक है. आयरन कोबाल्ट निकल जो था, आयरन कोबाल्ट निकल, इनके एटॉमिक मासेस 56, 59 and 59 approximately. यहाँ पे properties were similar, properties were सर quite similar. हाँ बोलो ना, similar. सर ये एक्सेप्शन मतलब कि वो उसने इसको ट्रायड क्लासिफाई किया बट ये नहीं अरे नहीं, रुको बताता हूँ. Properties were quite similar, but atomic masses do not follow average. देखो, उसने ये नहीं किया, ठीक है. कोबाल्ट आयरन निकल वाला चलो उसके टाइम में पता था, बट उसने ये नहीं बोला कि ये मेरे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. पीपल वेयर ऑफ द व्यू, हो सकता है आयरन के बाद के कोई एलिमेंट के साथ आयरन का बिहेवियर फिल इन हो जाए, बट ऐसा कोई पेयर नहीं मिला. और साथ में ये जो पेयर दिख रहा था, ट्रिपलेट दिख रहा था, वो ऐसा था कि प्रॉपर्टीज में तो सिमिलैरिटी है, लेकिन मास नंबर का जो एवरेज रूल है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है. रुथेनियम, रोडियम और पैलिडियम में है एवरेज एटॉमिक मास प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, बट प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस निकल रहे हैं. इज इट ओके? ये Yes, दोनों sir. बात समझ में आई. तो दोनों दो अलग अलग रीजन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. अब इसमें एक्सेप्शंस क्या दिया जाए? ऑब्वियसली मासेस, और पहला तो चीज ये था, इट वाज वर्किंग वेल विथ लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं. हायर एटॉमिक मासेस के लिए जनरली फेल कर रहा था. और दूसरा ड्रॉबैक था कि ऑब्वियसली वी कुड नॉट फाइंड more elements which are going to form the triplets. Is it okay? So the two important drawback of this is obviously ये सारे theories जो होने वाले हैं या laws जो होने वाले हैं, इनका सबसे पहला drawback तो ये है कि कोई sound theoretical law नहीं था इनके पास which is going to define the similarity traits. ठीक है. लॉ एज इन जो आगे लास्ट के दो मिलेंगे, एक मैंडलीव को, और मैंडलीव को काउंटर किया है आगे चल करके उसने, क्या बोलते हैं, हाँ, मॉर्स लॉ ने एक्स-रेज वेवलेंथ के बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज और chemical behavior is periodic property of atomic mass, atomic number. तो ये उसने एक एक्सपेरिमेंटल बैकअप या एक्सपेरिमेंटल आउटकम के थ्रू एस्टैब्लिश किया, एंड देन द थिंग्स मूव्ड ऑन, राइट. सो दैट वाज नॉट देयर विद देम, सो दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. ठीक है. अच्छा, अभी के लिए हम लोग रुक जाते हैं. विल असेंबल अगेन एट अराउंड 2:30. ठीक है. एंड तब मैं इसका ड्रॉबैक लिखवा दूंगा, एंड आगे के रूल्स जो है, आगे के जो है वो डिस्कस करूंगा. और मेंडलीव के पहले तक के 3 हैं, इसके बाद न्यूलैंड है और फिर एक लोथर मेयर है. यहां तक डिस्कस करके मैं रहने दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द फिजिक्स प्रॉब्लम्स. इज इट ओके? Yes, sir.